Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about type of combustion, that is slow combustion, rapid, spontaneous and explosive with their examples. Then how to control the fire. There are different methods to control fire. For example, if a person clothes catches fire, then he or she should be wrapped in thick blanket. Or if fire is due to kerosene or petrol, then put sand to cut off the supply of air. Or for some burning materials, you can use water to lower its ignition temperature to control the fire. And if fire occurs due to electric short circuits, then water should not be used because it can be dangerous and electric shock can be occur. And today we will do you know how soda acid type fire extinguisher works in the following manner. Fire extinguishers are the device that is used to stop the fire. So let's start working of soda acid fire extinguisher. As you can see in this picture that it contains metallic cylinder. It contains an acid in the glass bottle and solid sodium hydrogen carbonate outside it. Glass bottle, as you can see, this is a glass bottle and it contains sulfuric acid. इस glass जो bottle है, glass tube है, इस tube में क्या present है? Concentrated sulfuric acid. और इसके outside क्या present है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो. इस ट्यूब के बाहर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यहाँ पर, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट मीनिंग इज सेम. ठीक है. ऑन स्ट्राइकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर against the hard surface, the glass bottle breaks and the acid mixes with sodium hydrogen carbonate. The following reaction occur. This reaction is very important. इसमें होगा क्या, जब ये जो प्लंगर है किसी हार्ड मटेरियल के साथ में स्ट्राइक करता है तो ये ग्लास ब्रेक हो जाएगा, और इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस सल्फ्यूरिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विल अक्कर. Formula of sodium bicarbonate is NaHCO3. As you can see in this picture, that formula is NaHCO3 plus sulfuric acid H2SO4. When they react, then sodium sulfate Na2SO4 water plus carbon dioxide gas will be formed. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसके अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी and it covers the burning object like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire get controlled. जब ये रिएक्शन होगी, मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट में मिल रहा है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. मेन हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? इट विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देगा. एज यू नो दैट फायर अकर्स ड्यू टू presence of oxygen and carbon dioxide is heavier than oxygen and it will cut off the supply, so carbon dioxide will act as a extinguisher. So it is not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. एक तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर रहा है, सेकेंडली जो भी फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो फ्यूल के टेम्परेचर को कम कर देगा. और यू कैन से दैट इट विल लो द इग्निशन टेम्परेचर. फ्यूल के इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है ये. इट इज़ देयर फॉर एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर. तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? इट विल एक्ट एज फायर एक्सटिंग्विशर. तो आपको पता चला कि सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से वर्क करता है. Next, do you know is given to you, if the fire is caused by electric short circuit, it should not be extinguished by pouring water or carbon dioxide foam. It is because current will flow through the water, thereby giving a electric shock which may prove fatal.
In such cases, supply of electric current should be switched off and fire brigade should be called immediately. ये देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इफ़ यू रिमेंबर येस्टरडे वी डिस्कस दैट अगर फायर जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, देन डोंट यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश द फायर। रीज़न वाटर को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज वाटर जो है इट कैन कोज इलेक्ट्रिक शॉक और वो हार्मफुल हो सकता है। सो अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फायर लगी है तो आप उसको स्विच ऑफ कर दो करंट को एंड फायर ब्रिगेड को कॉल करो। वाटर का यूज़ मत करो फायर को स्टॉप करने के लिए। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबशन? अगर कंबस्टन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो क्या होगा? ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन अ पार्ट ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स into the atmosphere in the form of soot. This is not only waste the fuel but also pollute the atmosphere. आपको पता ही है कि जब कोई पार्टिकल कम्प्लीटली बर्न नहीं करता है तो उसके एक सूट मीन्स पाउडर फॉर्म रह जाती है जिसको आप ऐश बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फ्यूल भी वेस्ट होगा, क्योंकि जब फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ तो फ्यूल क्या हो जाएगा? वेस्ट होगा। एंड एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट करता है, पोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि फील्ड में जब फार्मर क्रॉप्स को कट करने के बाद में, हार्वेस्टिंग के बाद में वो वहाँ पर फायर लगाते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं, सूट पार्टिकल्स, जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस एंड कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इट मे ऑल्सो प्रूव टू बी फैटल। सेकेंड हम क्या बता रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, मतलब जब कोई पार्टिकल्स कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। एंड दिस गैस इज हाईली पॉइजन, हार्मफुल है, टॉक्सिक है नेचर में, एंड कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इट मे ऑल्सो प्रूव टू बी हार्मफुल। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है? आपको रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हार्मफुल इफेक्ट क्या बताओगे? इट कोजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड इट मे ऑल्सो प्रूव टू बी हार्मफुल। सो इट इज़ क्लियर टू यू। इसके 2 पॉइंट्स करने हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या बताया? ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज नॉट कंप्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल? अगर कोई फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होता तो क्या होगा? तो फर्स्ट आपने बताया कि जब कोई भी फ्यूल है, वो फॉर एग्जांपल कार्बन की अगर आप बात कर रहे हो, अगर वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा तो कार्बन पार्टिकल्स रह जाते हैं एंड दीज पार्टिकल्स विल पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। सेकेंड पॉइंट आपने बताया दैट मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल गैस, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लेम। Our next topic is flame. This topic is also very important. Flame may be defined as the region over which gases burn. When you burn a piece of paper or wax candle, a flame is produced. As you can see, this is a flame. ठीक है, flame क्या है? It is a region over which gases burn. मतलब जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है जहाँ पे गैसेस बर्न कर रही है, दिस रीजन इज नोन एज अ फ्लेम. On observing the flame of a lighted candle carefully, we find that it has 3 zones. This question is a very important diagram. Draw the diagram of candle. या फिर आपसे पूछ सकते हैं राइट द 3 जोन ऑफ कैंडल. 3 जोन्स के बारे में बताना है. तो आपने 3 जोन्स कौन सी बताई? फर्स्ट इज़ द इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन. दीज आर द 3 जोन्स. इनर मोस्ट जोन, इसमें क्या प्रेजेंट है? अनबर्नड वैक्स वेपर्स. मतलब जो वैक्स वेपर्स हैं वो पूरी तरह से बर्न नहीं होते. बर्न नहीं होंगे तो सूट मीन्स ब्लैक कलर के आपको पार्टिकल्स. ये जो इनर फ्लेम है वो कैसी होती है? ब्लैक कलर की. लिस्ट हॉट, सबसे कम हॉट होती है. आपने देखा होगा समटाइम कुछ लोग जो नीचे वाला पार्ट है फ्लेम का, वहाँ से अपने फिंगर को क्रॉस कर देते हैं, फ्लेम में से क्रॉस करते हैं. रीज़न बिकॉज लास्ट जो इनर मोस्ट जो पार्ट है दैट इज़ लिस्ट हॉट, सबसे कम गर्म होता है. तो इसीलिए आप अपने हैंड को, अपनी फिंगर को इसमें से मूव करा सकते हो इजीली. सेकंड जोन इज़ मिडल जोन. मिडल जोन को और क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस, येलो.
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच जोन ऑफ कैंडल इज येलो इन कलर, ठीक है, टेल द नेम ऑफ ल्यूमिनस जोन, तो आप क्या बताओगे? मिडल जोन। क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा के किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे। तो मिडिल जोन को ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है एंड इट्स कलर इज़ येलो। मॉडरेट मीन्स नॉर्मल हॉट होती है, ना ज़्यादा और कम ना इतनी कम होती है, तो मॉडरेट मीन्स नॉर्मल हॉट रहती है ये। एंड लास्ट जोन इज़ आउटर जोन। आउटर जोन इज़ नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस मीन्स ल्यूमिनस मीन्स जो आपको लाइट का येलो कलर दिखाई दे रहा था, बट दिस जोन इज़ नॉन ल्यूमिनस। एंड आउटर जोन इज़ वेरी हॉट, जो ये आपको सबसे लास्ट आउटर जोन दिखाई देगी, दिस इज़ वेरी हॉट जोन। तो डायग्राम अगर ड्रॉ करना आता है तो आपको सारे पॉइंट्स राइट करने पड़ेंगे। फर्स्ट आप बताओगे इनर जोन, फिर मिडल जोन, फिर आउटर जोन। फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं इनर मोस्ट जोन। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्नट वैक्स वेपर्स गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स। इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये डायग्राम में आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया था। डायग्राम में आपने क्या बताया? दैट ये अनबर्नट वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होंगे एंड दिस इज लिस्ट हॉट। यही आप लाइन्स में राइट कर रहे हो, दैट इट कंसिस्ट ऑफ अनबर्नट वैक्स वेपर्स एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट। लिस्ट हॉट है तो मतलब कोल्डेस्ट होगा ये। नेक्स्ट इज़ द मिडल जोन। मिडल जोन को और क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस जोन। इन दिस जोन पार्शियल कंबशन, पार्शियल मीन्स कम्प्लीटली कंबस्टन नहीं होती, पार्शली कंबस्टन होगी ऑफ वैक्स वेपर्स विद द लिबरेशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। सेकेंड जो मिडल जोन है, मिडल जोन में अ लॉट ऑफ एनर्जी मीन्स हीट बाहर निकलती है। दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोज द वैक्स वेपर्स इनटू कार्बन पार्टिकल। दिस जोन ऑफ द फ्लेम इज़ द होटर दैन द इनर जोन, इट इज़ येलो इन कलर। सेकेंड जो मिडल जोन है वो इनर मोस्टली गर्म होगी, हॉट होगी एंड इट्स कलर इज़ येलो। कलर कैसा है इसका? इस जोन का येलो कलर है। फिर हमने लास्ट में बताई आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन को और क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस जोन। इस जोन में कंप्लीट कंबस्टन होती है, मतलब पूरी तरह से पार्टिकल्स जो है वैक्स वेपर्स एंड कार्बन पार्टिकल्स कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं। एयर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फ्लेम मिक्सेस विद अनबर्नट वैक्स वेपर्स एंड कार्बन पार्टिकल्स एंड बर्न्स देम कम्प्लीटली। साइड से जो एयर होती है, एयर क्या करती है? जो भी सेकंड जोन में अनबर्नट पार्टिकल्स रह गए थे उनको कम्प्लीटली बर्न कर देगी, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज एंड वाटर वेपर्स। दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। तो हॉटेस्ट पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? हॉटेस्ट पार्ट इज़ द आउटर मोस्ट जोन। एक बार दोबारा से देखो, इनर मोस्ट जोन में क्या बताया? जो वैक्स वेपर्स हैं कंप्लीटली बर्न नहीं करते एंड दिस इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट। सेकंड मिडल जोन, इट इज़ येलो इन कलर और यू कैन से इट इज़ अ ल्यूमिनस जोन एंड पार्टिकल्स आर पार्शली कंबस्टन, मतलब कंबस्टन जो है इसके अंदर पार्शली होगी, मीन्स कंप्लीट नहीं होती है। बट आउटर मोस्ट जोन इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। Which zone as non-luminous zone? Then your answer will be outermost zone. And in this zone, complete combustion can take place, and air from the outside mix with unburnt wax vapors and burns them completely. Next activity, some activities are given to you, and these activities are very important. So learn and listen it carefully. First activity is take a candle of medium size and fix it on a table. Light the candle. When the flame of become steady, introduce the thin glass tube in the dark inner zone as shown in the figure. देखो, सबसे पहले आपने कैंडल ली और उसको बर्न किया, फिर आपने एक ग्लास ट्यूब, आपको दिखाई दे रहा है आपने क्या ली? ग्लास ट्यूब ली और ग्लास ट्यूब को आप कहाँ पे रख रहे हो? सबसे इनर मोस्ट जोन में। सबसे इनर मोस्ट जोन में जब आपने ग्लास ट्यूब को लिया, देन यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लास ट्यूब गेट्स फिल्ड विद ग्रेइश विद वेपर्स। आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये जो ग्लास ट्यूब है इसका कलर जो है वो ग्रे हो जाएगा, ग्रेइश वाइट वेपर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। विच स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। ये आपको कहाँ से दिखाई देंगे? इस अदर एंड से आते हुए दिखाई देते हैं। दिस ग्लास ट्यूब इज़ ओपन फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से ओपन है ये ग्लास ट्यूब। तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि यहाँ से वेपर्स बाहर निकल रहे हैं। एंड नाउ ब्रिंग अ मैच स्टिक। अब आप क्या करोगे? इसके पास में बर्निंग मैच स्टिक लेकर के आओगे नियर द माउथ ऑफ ट्यूब। यू विल ऑब्जर्व दैट द वेपर्स कैच फायर एंड बर्न प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम सिमिलर टू दैट ऑफ द कैंडल फ्लेम। आपको कैंडल के पास
जब आप इसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके आ रहे हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो ये इसमें से वेपर्स निकल रहे हैं ग्लास ट्यूब में से, ये वेपर्स भी फायर को कैच कर लेते हैं, ठीक है। दिस शोज़ दैट वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। हम लास्ट पीछे बता रहे थे ना कि इनर मोस्ट जोन में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्स वेपर्स। तो आपने एक्टिविटी के थ्रू प्रूव कर दिया दैट वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन इनर मोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल। कैंडल के इनर मोस्ट जोन में क्या प्रेजेंट है, वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू प्रूव दैट वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन इनर मोस्ट जोन, तो आपको ये एक्टिविटी करके दिखानी पड़ेगी। आप अपनी लैंग्वेज में राइट करोगे, बट यू विल राइट दैट टेक अ कैंडल, बर्न इट, and now take a glass tube, put this glass tube in innermost zone. You will observe that grayish white vapors are coming from the other side of a glass tube. When you will take burning matchstick, then these wax vapors also start burn like a candle flame. This shows that wax vapors are present in the innermost zone of a candle. तो एक्टिविटी अगर आपके पास आती है तो आपको ये लर्न करनी है एक्टिविटी और बताना है कि इनर मोस्ट जोन में वैक्स प्रेजेंट है। लेट अस नेक्स्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट ल्यूमिनस जोन ऑफ द कैंडल कंटेन्स अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। आपको इस सेकंड एक्टिविटी में बताना है कि जो सेकंड जोन है, सेकंड जोन में क्या प्रेजेंट थे, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहे हैं। तो आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है। एंड दिस एक्टिविटी मतलब दीज 3 एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी 4, 5, 6। इन एक्टिविटीज़ को आपने अच्छे से लर्न करना है। एक्टिविटी 5 में आपको क्या बताना है दैट जो सेकंड जोन है, सेकंड जोन में अनबर्न्ड, जिसको आप ल्यूमिनस जोन बोलते हो, अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के पार्टिकल्स जो है वो पूरी तरह से बर्न नहीं होते, पार्शली बर्न होते हैं। एंड यू विल प्रूव दिस बाय एक्टिविटी 5। लेट अस सी, टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल। आपने क्या किया, कैंडल ली और उसको टेबल पे फिक्स किया। लाइट द कैंडल, नाउ इंट्रोड्यूस द क्लियर ग्लास लाइट। ये आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ ग्लास लाइट। एंड पुट इट इनटू ल्यूमिनस मतलब आप उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे कि सेकंड जोन के अंदर आए। जैसे आपने फर्स्ट जो आपकी ग्लास ट्यूब थी उसको इनर जोन में लिया, और अब जो स्लाइड लेके चल रहे हो स्लाइड को कहाँ पुट करोगे, सेकंड जोन में, ठीक है। 30 सेकंड के लिए आपने इसको ग्लास स्लाइड को सेकंड जो मिडल जोन है वहाँ पर रखा। आफ्टर 40 सेकंड यू विल रिमूव इट, यू विल ऑब्जर्व अ सर्कुलर ग्रेइश ब्लैक रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास ट्यूब। एज यू कैन सी हेयर दैट आपको यहाँ पर एक सर्कल की फॉर्म में ब्लैक कलर की एक लेयर दिखाई दे रही है, रिंग दिखाई दे रही है, ब्लैक रिंग। दिस ब्लैक डिपोजिशन इज़ ड्यू टू अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स मतलब कार्बन पार्टिकल्स जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो रहे, पार्शली बर्न हो रहे हैं इन ल्यूमिनस जोन। द सेंटर ऑफ द रिंग डजंट हैव एनी कार्बन पार्टिकल। सेंटर आपको दिख रहे हैं, यहाँ सेंटर में कोई भी पार्ट आपको ब्लैक पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज दिस पार्ट वॉज ओवर द डार्क इनर जोन। क्योंकि जो ये पार्ट सेंट्रल पार्ट है ये कहाँ पर था, इनर जोन में, और इनर जोन में कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते। इनर जोन में क्या प्रेजेंट होता है, वैक्स वेपर्स। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या क्लियर हुआ दैट जो सेकंड जोन है, मिडल जोन, जिसका आप ल्यूमिनस जोन बोल रहे हो विच इज़ येलो इन कलर, दिस जोन कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जब कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं तो उसके ऊपर ग्रेइश ब्लैक कलर की एक रिंग दिखाई दे रही है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे बताओगे, यू विल राइट टेक अ कैंडल, फिक्स इट ऑन टेबल, नाउ लाइट द कैंडल and put glass slide in the middle zone, or you can say in luminous zone for 40 seconds. After 40 seconds we will observe that a black ring will be formed, but this ring is white in color in center because this central part was in innermost zone, and this black ring shows that second middle zone, or you can say luminous zone, contains unburnt carbon particles. That means carbon particles are not completely burned in this second zone, middle zone. Okay, activity 6 we will do activity 6 tomorrow. So today your work is you have to learn activity 4 and activity 5. And about flame, there are the 3 part: innermost zone, middle zone, outermost zone. Which zone is known as non luminous or hottest zone?
coldest zone, which is the normal hot, or you can say yellow in color luminous zone. ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं. एक्टिविटी 4 में आपको प्रूव करके बताना है दैट in innermost zone wax vapors are present. How will you prove that in middle zone unburnt carbon particles are present? You will prove this by activity. Okay, then you have to learn how soda acid fire extinguisher works. You have to learn this reaction also. And next, what happens when there is incomplete combustion. Okay beta, this is your work. Okay, and have a nice day.